Hi everyone, I'm Priyanka. Today I'll be continuing the same unit of the physical chemistry, that is the electrochemistry 2. So today's topic of discussion is the half cell reaction that will be followed by the Nernst equation. So before going to the today's topic, let us revise whatever we have discussed in the previous lecture. So in the previous lecture we discussed about the metal insoluble salt electrode. So इस पार्ट में हमने देखा था कि एक metal rod था that is dipped in the or that is coated with the salt of the insoluble salt of that metal. For example, अगर हमने सिल्वर का मेटल लिया है तो उसका insoluble salt that is सिल्वर क्लोराइड हम लेंगे एंड वहाँ पे एक और सोल्यूशन रहेगा which contains the same anion of the salt. So यहाँ पे AgCl is the salt, so मैं KCl का सोल्यूशन वहाँ पे ले सकती हूँ. Okay, so here a metal ion or a metal rod is coated with the metal insoluble salt of that particular metal which is dipped it in another solution containing the same anion as that of the salt, है ना. और यहाँ पे हमने Nernst equation में देखा था that the EMF of the cell it is depending upon the concentration of the anion, है ना, and not on the metal. Right? Then we have discussed about the redox electrode. So redox electrode, it consisted of a particular cell which had any inert metal, है ना, कोई भी inert metal का rod था that is dipped in a solution of the एक particular solution, ऐसा solution जिसमें एक ही metal दो oxidation state में present रहे. For example, Fe3 plus Fe2 plus, right? और Ag plus Ag2 plus. So कोई भी एक particular metal उसके दो oxidation states में वहाँ पे present रहेगा, उसको हम कहेंगे redox electrode. So in case of the redox electrode, जो EMF था, it was dependent upon the concentration of both the species, that is the oxidized species also and the reduced species as well, right? So this is all we have discussed in the previous lecture. Now in the today's lecture we'll be discussing about the half cell reactions, right? So ये जो cell reactions होती हैं ये particular cell में होगी, है ना. So let us see what is it. So half cell reactions, the devices in which the chemical energy is converted into the electrical energy, it is called as an electrochemical cell. ओके, सो क्या हो रहा है यहाँ पे, एक ऐसा डिवाइस जिसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. इसी को हम गैल्वेनिक सेल्स भी कहते हैं. ओके, सो यूजुअली इन दिस सेल्स व्हाट हैपेंस, रिएक्शन जो है वो बहुत ही स्पॉन्टेनियस होती है, राइट? और इस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की वजह से ईएमएफ जो है वो जनरेट होता है. Okay, so in this cell, a spontaneous reaction takes place due to which EMF is generated. And the most common example of this particular type of the cell is the Daniell cell. Okay, so what is an example? The example is the Daniell cell. So आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे Daniell cell क्या होता है, और Daniell cell के हेल्प से we will discuss what do you mean by the half cell reactions. Okay, so let us move forward with the Daniell cell. So here you can see this is a Daniell cell. Okay, so this whole is a Daniell cell. So in this Daniell cell you can see यहाँ पे दो बीकर्स हैं, दो बीकर्स में दो रॉड हैं, दोनों में कुछ कुछ सॉल्यूशन है, और ये दोनों दिस इज both the rods are connected to a particular voltmeter and you can see यहाँ पे कुछ एक ऐसा है जो दोनों भी solution में dipped है. Okay, so now let us see what is it. So here usually we have two electrodes or a particular metal dipped in its own solution and a particular metal dipped in its own solution. मतलब ये कौन से electrodes हैं? These are metal ion electrode. Copper rod dipped in copper sulfate solution, zinc rod dipped in zinc sulfate solution. Both are connected to the voltmeter, right? Both are connected to the voltmeter. Now ये दोनों cells को connect करने के लिए we are introducing a salt bridge here. Okay, and salt bridge में usually we have KCl solution. ओके, सो व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, ये हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे. सो अब हम डिस्कस कर रहे हैं Daniell सेल, और Daniell सेल के अकॉर्डिंगली वी विल बी डिस्कसिंग दी हाफ सेल रिएक्शंस. ओके, सो नाउ हियर यू कैन सी द जिंक इलेक्ट्रोड, दिस इज एन एनोड, इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड एंड यहाँ पे जो है वो ऑक्सीडेशन हो रहा है. सो हियर यू कैन सी
zinc is accepting 2 electrons and it is giving you Zn2 plus ions. ओके इसका मतलब जिंक जो है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन में जा रहा है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है. इस साइड में आप देखेंगे कॉपर 2 प्लस आयंस आर एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट इज कन्वर्टेड टू कॉपर. Cu2 प्लस कन्वर्टिंग टू 0. पॉजिटिव से जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होता है तब क्या होता है, रिडक्शन होता है. सो कैथोड जो है उसके ऊपर रिडक्शन होगा एंड कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड. ओके सो Zn2 प्लस यहाँ पे एनायंस एंड कॉपर इज दी कैटायंस. ठीक है, सो इसमें हम देखेंगे क्या होता है. सो हाउ टू रिप्रेजेंट दिस सेल. सो हियर यू कैन सी जिंक रॉड सॉलिड है, दिस इज इन कॉन्टैक्ट, एक लाइन मतलब कॉन्टैक्ट विद दी जिंक सल्फेट सॉल्यूशन. जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन एक्वस है इसलिए हमने ब्रैकेट में एक्वस लिया. नाउ दिस हाफ सेल is separated with this half cell, इसलिए हमने 2 vertical lines दिखाई. So here we have copper sulfate का solution again aqueous in contact with the copper solid. So इस तरीके से हम सेल को represent करेंगे. Okay, so whenever you have 2 vertical lines, so it means that इस साइड एक हाफ सेल है और दूसरी साइड एक हाफ सेल है, राइट. सो दिस इज अ पर्टिकुलर हाफ सेल. इस हाफ सेल में जो भी रिएक्शन होगी उसको हम कहेंगे हाफ सेल रिएक्शन. इसमें जो भी रिएक्शन होगी उसको हम कहेंगे अनदर हाफ सेल रिएक्शन. ओके सो नाउ हियर यू कैन, इस डायग्राम में आप एक और चीज देख सकते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके सो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहाँ मूव हो रही हैं, एनोड से दे आर मूविंग टू दी कैथोड. Okay, so I hope this particular figure is very much clear to all of you. So अब हम देखेंगे working, ठीक है, कि यहाँ पे कौन से इलेक्ट्रोड पे कौन सी रिएक्शंस हो रही हैं. So सबसे पहले हम देखेंगे जिंक इलेक्ट्रोड, एट जिंक इलेक्ट्रोड. ओके सो जिंक इलेक्ट्रोड पे क्या होता है, द सॉलिड जिंक गोज इनटू द सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ Zn2 प्लस आयंस, राइट. सो क्या हो रहा है, जो मेटल रॉड है वहां से जिंक जो है, सॉलिड जिंक, वो सॉल्यूशन में जा रहा है. तो ऑब्वियसली वो सॉल्यूशन में जाएगा तो इट विल गो इन द फॉर्म ऑफ आयंस. अब क्योंकि यहाँ पे जिंक से Zn2 प्लस बन रहा है इसलिए देयर विल बी द रिलीज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स. ओके सो द रिएक्शन इज Zn solid, that is zinc solid, converting to Zn2 plus ions with the release of 2 electrons. ओके सो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, सो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है इसीलिए ऑक्सीडेशन हो रहा है. ओके सो नाउ व्हाट हैपेंस, दिस Zn2 प्लस आयंस कहाँ जा रहे हैं, दे आर पासिंग इनटू द सॉल्यूशन व्हाइल द इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स ऑन द इलेक्ट्रोड्स. ठीक है, Zn2 प्लस आयंस जो है वो सॉल्यूशन में जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रोड पे ही रह रहे हैं. क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोड पे ही रह रहे हैं इसीलिए इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज आएगा, राइट. क्योंकि इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज आएगा इसीलिए हम उसको बोलते हैं एनोड. ओके सो व्हाट इज इट कॉल्ड, इट इज कॉल्ड एज दी, ओके लेट मी टेक दिस, ठीक है. सो बिकॉज the electrons remain on the electrode, therefore electrode gets the negative charge, right. Now since the electrode is getting the negative charge, therefore it is called as the anode. ठीक है, सो एनोड पे क्या हो रही है, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है. ओके सो व्हाट ऑल थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड हियर, जिंक मेटल से जिंक आयंस जो है वो सॉल्यूशन में जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ Zn2 प्लस आयंस और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रोड पे ही रह जाएंगे. क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोड पे ही रह गए हैं इसीलिए इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज आएगा, राइट. और जो प्रोसेस हो रही है वो कौन सी हो रही है, द प्रोसेस दैट इज टेकिंग प्लेस इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ओके और इस इलेक्ट्रोड को हम क्या कहेंगे जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इट विल बी कॉल्ड एज द एनोड. क्लियर. ओके नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट इलेक्ट्रोड. कौन सी इलेक्ट्रोड है हमारे पास, नेक्स्ट वन इज द कॉपर इलेक्ट्रोड. सो व्हाट हैपेंस एट द कॉपर इलेक्ट्रोड, नाउ वी हैव सीन दैट द इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रह रहे हैं जिंक इलेक्ट्रोड पे. ठीक है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, Zn2 plus, okay, Zn2 plus goes into the solution and electrons remain on the electrode. So what happens, these electrons are moving, see the direction, the electrons are moving. कहाँ से, anode से they are moving to the copper electrode. Okay, so now let us see what happens. Now the electrons flow in a circuit and reach copper electrode. So outer circuit में है ना, यहाँ देखिए electrons जो है वो outer circuit में move हो रहे हैं.
ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या हो रहा है, ये आउटर सर्किट में मूव हो रहे हैं एंड दे आर गोइंग टू दी कॉपर इलेक्ट्रोड. सो जैसे ही वो कॉपर इलेक्ट्रोड के ऊपर आएंगे, व्हाट विल हैपन, इसमें जो Cu2+ आयंस हैं वो ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेंगे एंड दे विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉपर एंड दे विल डिपॉजिट ऑन द कॉपर इलेक्ट्रोड. सो लेट अस सी, द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन अ सर्किट एंड रीच द कॉपर इलेक्ट्रोड. दे रिड्यूस कॉपर. ओके, सो यहाँ पे ये कॉपर होना चाहिए. सो दिस इज नॉट N, this should be Cu2+. Okay, so what will happen here, the copper 2+ ions को वो reduce करेंगे जो अपने solution में present है. Okay, so the electrons is flowing in the outer circuit and they are reaching the copper electrode. Then they'll reduce this Cu2+ ions and they'll get deposited as the copper. So here you can see the reaction that is happening. Cu2+ aqueous is accepting 2 electrons and it is converted into copper. So 2+ oxidation state से 0 oxidation state. So जब भी positive से negative की तरफ आएगा तब क्या होगा, reduction. Hence reduction is happening. ओके, नाउ सिंस द इलेक्ट्रॉन्स आर कंज्यूम्ड, है ना, इलेक्ट्रॉन्स रह रहे हैं क्या, नहीं, इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम कर रहा है कॉपर इलेक्ट्रोड, इसीलिए कॉपर इलेक्ट्रोड के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, कॉपर इलेक्ट्रोड विल गेट दी पॉजिटिव चार्ज. क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स अपने ऊपर रख नहीं रहा है, वो उसको यूज कर रहा है. देयरफॉर इट विल हैव अ पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इलेक्ट्रोड विल बी कॉल्ड एज द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. कौन सी रिएक्शन हो रही है वहां पे, द रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट दिस इलेक्ट्रोड एंड हेंस इट इज कैथोड. क्या बोले उसको, दिस इज कॉल्ड एज द कैथोड. सो कैथोड जो है वो एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और उसके ऊपर रिडक्शन जो है वो होता है. ओके, सो नाउ वी विल, सो ये हमारी एक हाफ सेल रिएक्शन हुई, ये हमारी एक हाफ सेल रिएक्शन हुई. सो एक सेल को कंप्लीट करने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे वी हैव यूज्ड दी सॉल्ट ब्रिज ओवर हियर, बराबर, टू कनेक्ट दिस two half cells and make this a complete cell. So in this way net reaction लिखने के लिए हमको ये दो half cell reactions को combine करना पड़ेगा. So now you can see here the net cell reaction can be written as Zn plus Cu2+. This will give us Zn2+ and the copper. So यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको जो 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए वो ये जो जिंक है, ठीक है, जिंक जो है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स कॉपर को देगा एंड दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉपर, राइट. अब क्योंकि जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिया इसलिए इट इज कन्वर्टिंग टू Zn2+ aqueous. ओके, सिंस द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन अ सर्किट EMF इज जनरेटेड, ठीक है, हेंस इट एक्ट्स एज अ गैल्वेनिक सेल. इसी को हम गैल्वेनिक सेल कहते हैं. सो हाफ सेल रिएक्शंस में हम एक हाफ सेल पे जो रिएक्शन हो रही है वो लिखेंगे, दूसरी हाफ सेल पे जो रिएक्शन हो रही है वो लिखेंगे. सो इन दिस वे वी हैव दी 2 हाफ सेल रिएक्शंस इन अ गैल्वेनिक सेल. एक पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे पे हमेशा रिडक्शन होगा, राइट. सो नाउ किसके ऊपर ऑक्सीडेशन होता है और किसके ऊपर रिडक्शन होता है ना, कौन सी इलेक्ट्रोड कौन से साइड में प्रेजेंट होती है, इसको याद रखने के लिए वी विल सी अ फॉर्मूला. सो ऑलवेज रिमेंबर, so I'll write it here. So always remember LOAN, LOAN. Okay, so here L stands for left hand. Okay, just a second, huh? L stands for left hand, O for oxidation, A stands for anode and N stands for negative. इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो एक मिनट है, ओके, सो हियर दिस सेज दैट लेफ्ट हैंड साइड पे जो इलेक्ट्रोड है वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, वो एनोड होती है और एनोड जो है वो नेगेटिव रहता है, राइट. सो एक साइड की इलेक्ट्रोड हमने याद कर ली तो दूसरी ऑटोमेटिकली हमको पता है. सो राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, वो कैथोड है एंड कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड. सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर हियर इज लोन. ओके, लेफ्ट हैंड ऑक्सीडेशन, एनोड एंड दी नेगेटिव. Clear? So I assume here that you have understood about the half cell reactions. Okay. So moving forward with the next topic for today, that is nothing but the Nernst equation. Okay. So let us discuss about the Nernst equation.
So for discussing the Nernst equation, let us consider a cell reaction. So here you can see we have AA, BB, this will give us CC and D, DD. Okay, so here for this अगर मुझे free energy change क्या है इस reaction के लिए ये निकालना है, so I have to use Van 't Hoff reaction isotherm, right? So Van 't Hoff reaction isotherm के हिसाब से it says that free energy, that is the delta G, is equals to delta G0 plus RT ln products upon the concentration of products upon the reactants. Okay, but we know that delta G is equals to minus of NFE, है ना? उसी के स्टैंडर्ड्स जो है वो क्या हो जाएगा, डेल्टा जी स्टैंडर्ड, दैट इज द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ NFE0, राइट? ये दोनों वैल्यूज हम इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे. सो वी विल हैव डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस NFE. सो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस NFE इज इक्वल्स टू माइनस NFE नॉट प्लस rest remains same, that is the RT ln products upon the reactants. Okay, so now here you can see, so here you can see we have few things in common. We have NF common, so NF will cut down, negative charge will also cut down. As a result, now I have E is equals to E naught plus RT ln concentration of products upon reactants. So now here you can see we have E is equals to E naught minus of RT upon NF ln of products upon reactants. इसी को अगर मैं log करूंगी, so I'll get minus of 2.303 RT upon NF log of products upon reactants. So this is nothing but the Nernst equation. इसी में अगर मैं 25 डिग्री सेल्सियस पे R की वैल्यू, T की वैल्यू और F की वैल्यू पुट करूंगी, so I will have I'll get 2.303 RT upon F, that is equals to 0.0591, right? So this can be written as E is equals to E0 minus of 0.0591 upon N log of product upon the reactant. Okay, so यहाँ पे values of E and E naught are the oxidation. This is the oxidation potential and this is the standard oxidation potential of the cell. Okay, so this is the Nernst equation. So you can write either this or this. Both are nothing but the Nernst equations. Okay, so now on the basis of the Nernst equation, we will discuss certain numericals. Okay, so यहाँ पे you can see the EMF of cell. एक particular cell दिया है cadmium in cadmium chloride solution, that is, and the another half cell is silver in the silver chloride solution. Right? So इनका EMF दिया हुआ है, that is 0.673 volt at 25 degree Celsius. So you have to calculate the free energy change. क्या calculate करना है? Free energy change मतलब delta G अपने को calculate करना है. Right? So now first of all what we have to do, we have to write the cell reactions. Okay, so cell reactions. So this is left hand side, this is right hand side. Okay, so left hand side पे हमेशा oxidation होगा. So CD will get converted to CD2 plus okay, so here I should get 2 electrons, right? So let us correct it. Okay, so here let me take the pen. So here we have 2 electrons, right? And then right hand side पे क्या होगा? Oxidation. So 2 Ag plus 2 electrons, we will get 2 Ag. So now writing the net reaction, we have CD plus 2 Ag plus, this will give us CD2 plus 2 Ag. ठीक है, तो ये क्या है हमारी नेट रिएक्शन. सो इस नेट रिएक्शन से हमको क्या पता चला? वी हैव सीन दैट द वैल्यू ऑफ N इज इक्वल्स टू 2. सो हेंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज इन्वॉल्व्ड इन दिस रिएक्शन आर 2. सो अब क्या करेंगे, हमको क्या निकालना है? वी हैव टू कैलकुलेट द फ्री एनर्जी चेंज, मतलब डेल्टा जी. सो वी नो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ NFE. E उसने हमको बताया है, that is 0.673. F is constant, हमको पता है, this is 96500, and N हमने calculate किया with the cell reaction. So this is minus 2 into 96500 into 0.67. Okay, so no need of writing, this is something wrong. So this is 0.673. So now if you do this simple multiplications, you will get the particular value, and you have to remember the unit of free energy, that is kilojoule per mole. Okay, so now
you might think the number of electrons कैसे निकलेंगे. So यहाँ से आपको hint मिल सकती है. You have a cell that is CD, that is the cadmium, in contact with the cadmium chloride. Okay, so here you can see एक cadmium को आपको दो chloride ions लगे. एक Cl पे एक नेगेटिव चार्ज. सो दो Cl पे यू विल हैव 2 माइनस का चार्ज. मतलब एक कैडमियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होगा, इसीलिए उसको 2 क्लोराइड आयंस लगे सेटिस्फाई करने के लिए. राइट, देयरफॉर दिस कैडमियम विल कन्वर्ट टू कैडमियम 2 प्लस आयंस. सिमिलरली AgCl, राइट. सो Ag एंड Cl, एक Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना. सो यहाँ पे Ag भी एक ही है, मतलब Ag के ऊपर कितना पॉजिटिव होगा, एक. देयरफॉर दे हैव सैटिस्फाइड ईच अदर, इसलिए सेकंड रिएक्शन में हमको Ag प्लस ही मिला. राइट, अब यहाँ पे 2 क्यों लिया, क्योंकि कैडमियम को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो कैडमियम को 2 इलेक्ट्रॉन देने के लिए वी विल रिक्वायर 2 सिल्वर आयंस, है ना, इसीलिए 2 लिया. क्लियर है. Now moving towards the next problem. So here you can see, calculate the standard EMF. Again एक सेल दिया हुआ है आपको, and given that the free energy of formation of Zn2 plus and Cu2 plus ions are, so here दो free energy अपने को दी है respectively. क्या करना है, we have to calculate the standard EMF, मतलब you have to calculate E0. So E0 is question mark over here. ठीक है. So now solution. So we have the cell is zinc in Zn2 plus ions and the copper 2 plus in the copper. So ये this is nothing but the Daniell cell है ये, right. Concentration दिया है जिंक और कॉपर का, that is 1 molar. Okay, so cell reaction क्या हो गई यहाँ पे, Zn plus Cu2 plus this will give Zn2 plus plus Cu, है ना. Now since there is a 2 positive charge, मतलब N is equals to 2. Okay, so now let us see from the given data. We know that जिंक, ठीक है, Zn में अपने को मिल रहा है यहाँ पे Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट. सो उसके लिए डेल्टा G0 दिया हुआ है अपने को, है ना. फ्री एनर्जी दिया है, दैट इज -170, दिस इज गिवन -17.03. एंड कॉपर की रिएक्शन के लिए हमको दिया है 65.52. ओके, सो नाउ इफ वी सब्ट्रैक्ट 1 - 2, सो इक्वेशन 1 - 2, तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, बोथ दीज इलेक्ट्रॉन्स विल बी गॉन. सो विल गेट द नेट रिएक्शन, दैट इज जिंक प्लस जिंक सॉलिड प्लस Cu2 प्लस, दिस विल गिव अस Zn2 प्लस कॉपर. कुछ नहीं, हमने यहाँ पे नेट सेल रिएक्शन लिखी है. सो मूविंग फॉरवर्ड, सो दिस नेट सेल रिएक्शन इज रिक्वायर्ड. सो डेल्टा G0 क्या है, दिस इज द स्टैंडर्ड एनर्जी, फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन. सो अपने पास इक्वेशन है, डेल्टा G0 इज इक्वल्स टू -NFE0. डेल्टा G0 अपने पास है, राइट. N हमने निकाला, 2 इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे, F इज कांस्टेंट एंड E0 इज नोन. ओके, सो नाउ हियर लेट अस सी what is the delta G. So how will you calculate delta G? So we have 2 delta G's over here. So हम क्या करेंगे यहाँ पे, delta G0 this will be equals to -147.03 -65.52. Okay, so this will come out to be, calculate करो, this will come out to be -212.55 kilojoule. अगर मैं इसको जूल में कन्वर्ट करूं तो मुझे मिलेगा -21255 joules. ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव गॉट. सो अब हम डेल्टा जी की वैल्यू नेक्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे. सो हियर डेल्टा G0 इज -212,500 इज इक्वल्स टू N इज 2, सो -2 × 96500 into E. So this इसी को कैलकुलेट करेंगे तो we will have E0 is equals to -212,550 divided by -2 into 96500. Okay, so if you calculate this we will get 1.101 volts. ठीक है, EMF हमेशा volts में होता है, therefore unit is volts. Clear? Okay, so
discussing last numerical for today. So let us see. We have calculate the free energy change for a particular cell. So here you can see zinc is dissolved in zinc sulfate and Ag rod is dipped in the silver chloride solution. बराबर. So यहाँ पे given है, ठीक है. गिवन क्या है? दैट इज दी स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ जिंक सल्फेट या फिर Zn2 प्लस आयंस दिया हुआ है, दैट इज 0.76 वोल्ट्स एंड दैट ऑफ सिल्वर प्लस आयंस का दिया है -80, राइट. सो नाउ जिंक जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे है, मतलब ऑक्सीडेशन होगा. सो Zn विल गिव अस Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, सिल्वर 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, वी विल गेट 2Ag. नेट रिएक्शन लिखेंगे तो जिंक प्लस 2Ag प्लस वी विल गेट Zn2 प्लस 2Ag. तो यहां से हमको क्या पता चला? यहां से हमको पता चला दैट N इज इक्वल्स टू 2. ओके, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द फ्री एनर्जी चेंज, है ना. So here we have oxidation potential and we have reduction potential. So now here we have E0 of cell is equals to standard EMF of oxidized species minus standard EMF of the reduced species. So that is nothing but E0 of Zn2 plus minus of E0 of Ag2 plus. Okay. Okay, so यहाँ पे 2 plus नहीं होना चाहिए, Ag का Ag plus ही हो रहा है. Okay, so we will have plus here, है ना. Okay, so now zinc की वैल्यू दी है 0.76, so 0.76 minus of 0.80, so minus, so यहाँ पे एक और माइनस आना चाहिए, ठीक है, माइनस ऑफ 0.80, so माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. so 0.76 प्लस 0.80 दैट कम्स आउट टू बी 1.56. so हमको क्या कैलकुलेट करना है? वी हैव टू कैलकुलेट फ्री एनर्जी, यानी कि डेल्टा G0. so now we know the equation, that is delta G0 is equals to minus of NF E0. E0 हमने अभी कैलकुलेट किया, F की वैल्यू हमको पता है, N की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर ली. so that is equals to minus of 2 into 96500 into 1.56, right. so this comes out to be minus of 3010805 जूल, एंड उसी को हमने किलो जूल में कन्वर्ट किया तो माइनस ऑफ 301.080 किलो जूल्स. क्लियर. सो इन दिस वे नॉन्स इक्वेशन पे मैक्सिमम आपको यहाँ पे हमको 2 इक्वेशंस याद करनी है, दैट इज डेल्टा G इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ NFE. इसी को आप स्टैंडर्ड भी कर सकते हैं, दैट इज नॉट अ इशू. एंड देन वी हैव E इज इक्वल्स टू E0 माइनस ऑफ 2.303 RT अपॉन NF log of product, concentration of product upon concentration of reactants, right. so यहाँ पे हमको क्वेश्चंस किन किन चीजों पे पूछ सकते हैं? so the questions can be asked on delta G0, on the EMF, right. यहाँ पे भी this can be asked or this can be asked. so these are the only questions that can be asked on the Nernst equation, right. so remember this. and also जो आपको सेल दिया हुआ है उसमें लेफ्ट पे हमेशा आपका रिडक्शन ऑक्सीडेशन होगा, ये हमेशा याद रखेंगे आप. और कौन सा कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने चाहिए ये भी आपको कैलकुलेट करते आना चाहिए, राइट. सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. Thank you so much. If you have any doubt regarding anything, please ping me. I'll help you out. Thank you.